गायत्री मंत्र, इसको सावित्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र में 24 अक्षर होते हैं जो 24 तत्वों के वाची हैं। ये समस्त ब्रह्मांड 24 तत्वों से बना है। उन 24 तत्वों का प्रतिनिधि एक एक अक्षर गायत्री मंत्र में है। गायत्री कहते हैं कि गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से ही हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में 24 अवतारों की कल्पना की है। इसी प्रकार जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकरों की कल्पना की है। तो वो 24 जो सृष्टि के तत्व हैं वही गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। तो गायत्री मंत्र की जो व्याख्या महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में कही है, समुल्लास 3 में, कि सभी बच्चों को, हर बच्चे को गायत्री की शिक्षा देनी चाहिए। जब गुरु मंत्र दिया जाता है, गुरु कान में इस मंत्र की शिक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले ओम का उच्चारण, उसके बाद भूर्भुवः स्वः का उच्चारण सिखाता है और तत्पश्चात गायत्री का मंत्र का अर्थ सहित उसका अभ्यास कराया जाता है। गुरुकुलों में ये पाठ विधि चलती है और ब्रह्मचारिणी जननी गुरुकुल चोटीपुरा में अध्ययन किया है। तो उपनयन संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार होता है, तो गुरु दीक्षा दी जाती है। गुरु लोग सबसे पहले गुरु मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र की शिक्षा करते हैं। ओम का उच्चारण, भूर्भुवः स्वः का उच्चारण और तत्पश्चात गायत्री का उपदेश। तो महर्षि दयानंद ने गायत्री के संबंध में जो लिखा है नीदरलैंड्स भाषा में जननी के मुँह से सुनते हैं। De kinderen moeten de heilige koortsceremonies eerst thuis ondergaan en daarna voor de tweede maal op school. De vader, moeder of leraar moet hun jongens en meisjes de Gayatri mantra met de betekenis daarvan leren. Het eerste woord van deze mantra is Om. Dit is reeds uitgelegd in het eerste hoofdstuk van Satyarth Prakash. De lezer wordt daarnaar verwezen. Hiervan geven wij in het kort de uitleg van 3 uiterste belangrijke zinzegen. Bhuriti vai pranaha, yah pranayati characharam, jagatah sa bhu swayam bhurishwarah. De lettergreep bhu, die letterlijk adem betekent, staat hiervoor degene die de basis is van alle leven in het heelal. Belangrijker dan de adem zelf en zelfbestand. Hij is de Paramatma. Yah sarvam dukha mapnyati sopanah. Bhuva is de naam van God daar hij vrij is van alle leed en contact met hem de zielen bevrijdt van alle zorgen. Swariti vyanah yo vividham jagat vyanayati vyapnoti sa vyanah. Swaha is de naam van God daar hij het heelal doordringt en allen onderhoudt. Deze 3 citaten zijn ontleend aan de Taittiriya Aranyak. De betekenis van Gayatri mantra. Yah sunyotpadayati sarvam jagat sa savita tasya. Hij die de schepper en energie schenkende is van de heelal. Yo divyati divyate vasa devaha. Paramatma die de schenker van alle geluk is. En waartoe mahram, wiens nabijheid door allen gezocht wordt, Varenyam, de geheel aanvaardbare, de verhevenste, Bhargaha, die reine en reiniger, de levende God, dat laat onze realisatie van die God, Dhre Mahi, stevig vasthouden, zodat Yah, die God, na ons, Dhya, mentale gebreken, richting mogen, prachodayat geven. Dit betekent, mogen God ons bevrijden van slechte daden en ons leiden tot het plegen van goede daden. हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे नित्य शुद्ध भूत मुक्त स्वभाव, हे कृपानिधे, हे न्यायकारी, हे अजय निरंजन निर्विकार, हे सर्वांतर्यामी,
हे सर्वाधार सर्व जगत पिता, हे सकल जगत उत्पादक, हे अनादि, हे विश्वंभर, हे सर्वव्यापी, हे करुणामृत वारिध, हे सवितु देवस्य तव यदो भूर्भुवः स्वरेण्यं भर्गो अस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि धरेमहि ध्यायेयं वा कस्मै प्रयोजनाय त्राह। हे भगवान, यह सविता देवः परमेश्वरो स भवान् स्माकं धियः प्रचोदयात्, स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्ट देवो भवतु, नातोऽन्यं भवतुल्यं भवतोऽधिकं च कंचित कदाचिन्म्याहमे। O mensen, almachtige God, voor de verpersoonlijking van waarheid, intellect en zegen, eeuwig rein, eeuwig wijze en eeuwig vrije, ongeschapene, niet vermengde en onveranderlijke, in allen zijnde, basis van alles, God van het heelal, schepper van de hele wereld, beginloze, onderhouder van allen, aldoordringende, vergiffenisvolle, mogen wij uw goede tierenheid realiseren en vasthouden. Het doel van ons bidden tot God is dat Hij in onze zielen zijnde ons mogen behoeden van slechte daden en slechte wegen en ons mogen leiden naar het pad van de gerechtigheid. Laat ons niet anders dan Hem aanbidden. Niemand is zijn gelijke of meerdere. Hij alleen is onze Vader, Koning, Rechter en Schenker van het geluk। तो ये इस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने सभी बच्चों को गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र की दीक्षा का विधान किया है। उसका अर्थ, उसका बतकनिस संस्कृत में, हिंदी में और साथ ही साथ नीदरलैंड्स भाषा में, तीनों भाषाओं में आज ब्रह्मचारिणी जननी ने ये उपदेश, ये वर्णन गायत्री मंत्र का किया है। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा। आज जननी ब्रह्मचारिणी का 17वां जन्म दिवस भी है। आज उसने यज्ञ किया है। यज्ञ का नाम था सरस्वती गायत्री महायज्ञ। श्री देवर्षि वेदमाता मंदिर में प्रति सप्ताह ही विशेष यज्ञों का आयोजन होता रहता है, जिसमें दैनिक यज्ञ हमेशा ब्रह्मचारिणी जननी कराती है। आज जो गायत्री गुरु मंत्र का उपदेश और सावित्री मंत्र का और सरस्वती मंत्र का जो पाठ अध्ययन किया है, उसके साथ साथ में हम सब की ओर से, समाज की ओर से, माता पिता की ओर से, गुरु आचार्य ऋषिजनों की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि बालिका इसी प्रकार से अपनी वेद विद्या को वेद माता की उपासना के द्वारा बढ़ाती रहे और सारे संसार के अंदर कृण्वन्तो विश्वमार्यम, वैदिक धर्म की दुंदुभी इसी प्रकार से तीनों भाषाओं में, हिंदी, संस्कृत, नीदरलैंड्स में अपनी विद्या का प्रचार करती रहे। इसी शुभकामना के साथ में गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, सामान्य रूप से हिंदी में हम लोग समझते हैं ओम, वह परमात्मा तीनों लोकों का स्वामी है। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक का स्वामी है। तत् वह सविता सूर्य के समान प्रकाश युक्त है। वरेण्यम, वर्ण करने योग्य है। भर्गः, सभी क्लेशों को भस्म करने वाला है। और देवस्य, व देवों का भी देव है, महादेव है। उसको धीमहि हम अपने हृदय में धारण करें, हम उसका ध्यान करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हम सबकी बुद्धि पवित्र हो। धी, विद्या, बुद्धि के द्वारा ही हम संसार में वैदिक मार्ग, सत्य सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसी श्रेष्ठ शुभ भावना के साथ में यह सरस्वती गायत्री यज्ञ यहाँ पर संपन्न होता है। बिटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति 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 ओम।